ان کی کرامت میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک دیوار دکھائی دے رہی ہے آپ کو، تو یہ دیوار ہے نا کافی بہت لمبے ڈسٹینس کو کور کرتی ہے. دیوار جو ہے نا یہ ادھر یہاں تک دکھائی دے رہی ہے دیوار. العلم نور العلم نور العلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو چینل. میں ہوں آپ کا دوست عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عامر احمد آفیشیل. الحمدللہ ہم حاضر ایک اور بار اترولی سے. تو اترولی میں ایک اور درگاہ شریف کی زیارت کرنے جائیں گے ہم. ان کا نام ہے، یعنی ان کو جو نون ہے یہ پکے باغ والے کے نام سے. تو حضرت کی بارگاہ میں جائیں گے، ان کے بارے میں ہسٹری کرامت وغیرہ جو بھی انشاءاللہ تو معلوم پڑے گی وہ آپ کو ضرور بتائیں گے. تو چلیے چلتے ہیں آگے. چلنے سے پہلے آج جو ہے ہم ایک اور ہمیشہ ایسے کرتے ہیں، درود شریف کی فضیلت سیکھ لیتے ہیں. تو درود شریف کی فضیلت میں آتا ہے حضرت ابو مواہب رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اپنے خواب میں دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کل بروز قیامت 1,00,000 لوگوں کی شفاعت کرو گے. سبحان اللہ. تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قابل کیسے بنا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر کثرت کیا درود شریف پڑھتے ہو اور اس کا ثواب مجھ پر نظر کر دو. اس لیے ان کو یہ جو ہے کل بروز قیامت یہ جو فضیلت حاصل ہوئی الحمدللہ. تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی زیادہ سے زیادہ روزانہ درود شریف پڑھا کریں. تو آپ بھی نیت کر لیجیے کہ روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. تو آج بھی شروع کر دیں درود شریف پڑھنا. اب ہم چل رہے ہیں تو آپ کو جائیں گے، زیارت کرائیں گے، ہسٹری وغیرہ کرامت سب بتائیں گے. تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جب مدینے کی فضا میں بے قرار آ جائے گا، جب مدینے کی فضا میں بے قرار آ جائے گا، تب نسیم فیض سے دل کو قرار آ جائے گا، تب نسیم فیض سے دل کو قرار آ جائے گا. پیارے آقا سونے آقا میرے راجا، پیارے آقا جب مدینے کی فضا میں بے قرار آ جائے گا، جب نگاہوں کے قریب کا مزار آ جائے گا، جب نگاہوں کے قریب کا مزار آ جائے گا، جرم کی بخشش کا دل میں اعتبار آ جائے گا، جرم کی بخشش کا دل میں اعتبار آ جائے گا، جب مدینے کی فضا میں بے قرار آ جائے گا، جب مدینے کی فضا میں بے قرار آ جائے گا، وہ نہ دامن کو ہوا دے گا کسی دہلیز پر، وہ نہ دامن کو ہوا دے گا کسی دہلیز پر. تو
अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हम जो है पहुंच चुके हैं अपनी दरगाह शरीफ पर। हमारे भाईजान भी साथ में माशाल्लाह। तो ये बताएंगे पहले हम इनका नाम हमें पता नहीं था पहले, तो कहाँ जा रहे हैं। तो इनको वैसे इनका जो निक नेम कहा जाता है माशाल्लाह, ये जो नोन है वो है पक्के बाग वाले के नाम से। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं इनको पक्के बाग वाले कहते हैं। वैसे इनका नाम भाईजान हजरत सैयद शाह साद मोहम्मद फैयाज चिश्ती साबरी। माशाल्लाह, तो हजरत सैयद साद शाह मोहम्मद चिश्ती साबरी इनका नाम है। तो खैर अब आप चलते हैं, आपको ज़ियारत करवाते हैं। बेकरारा जाएगा जब मदीने की फिजा में बेकरारा जाएगा। हश्र में छट जाएंगे उस वक्त बादल खौफ के। हश्र में छट जाएंगे उस वक्त बादल खौफ के। जिस घड़ी मैदान में मदनी ताजदारा जाएगा। या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। कब इसे अपनी खताओं का शुमारा जाएगा। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा। जब मदीने की फिजा में बेकरारा जाएगा। जब मदीने की फिजा सोने आजा मेरे आका प्यारे आका प्यारे आका प्यारे आका। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा हाँ, आपने भी ज़ियारत कर ली, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत करी। काफ़ी ये पुराने बुज़ुर्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो है यहाँ के जो खिदमत गुज़ार हैं वो अवेलेबल नहीं है, मगर एक चाचा में मिले हैं, उन्होंने कुछ बताया है इनके बारे में। तो बहुत पुरानी दरगाह शरीफ है और ये जो है बुज़ुर्ग जो है ये बाहर से तशरीफ़ लाते हैं, इंडिया के नहीं है। और उस वक्त में हम सोच भी क्या रखते हैं, मतलब ये फरमा रहे थे कि इनको बाहर से भेजा गया है यहाँ पर हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बाहर से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं ये शायद वो जो खिदमत गुज़ार है शायद वो बता पाएंगे। अभी फ़िलहाल तो कोई अवेलेबल नहीं है। बाकी मैंने शजरा शरीफ भी इसका जो है आपको दिखा दिया, तो शजरा शरीफ भी आप पढ़ सकते हैं माशाल्लाह। पूरा सजरा वगैरह सब अवेलेबल है इनका अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब यहाँ के बहुत बड़े ये जो अतरौली शहर है हमारा, तो इसके बहुत यानी नामचीन बुज़ुर्ग में से एक बुज़ुर्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने पूछा करामत के बारे में, तो करामत के बारे में वो एक बता देता हूँ मैं आपको। ये देखें आप, इनकी करामत में बताया जाता है कि ये एक दीवार दिखाई दे रही है आपको। तो ये दीवार है ना काफ़ी बहुत लंबे डिस्टेंस को कवर करती है, बीच में टूट गई है काफ़ी जगह पर। तो ये दीवार जो है ना ये इधर यहाँ तक दिखाई दे रही है दीवार। तो ये दीवार जब ये तशरीफ़ लाए थे तब ये दीवार एक रात में ही बन गई थी, ऐसा यहाँ पे लोग बता रहे हैं। और मैं आपको दीवार दिखाता हूँ ये कैसी है। नहीं है आज के वक्त की दीवार नहीं है, क्योंकि दीवार को आप देखेंगे ना तो इसमें पतले वाले जो ईंट होती हैं पतली पतली। आज के ज़माने में तो आपने शायद ये ईंट देखी भी नहीं होगी। मैंने खुद मैं पहली बार ऐसी ईंट देख रहा हूँ। तो ये नज़दीक से हम आ चुके हैं। अब आप देखें ये ईंट जो है हमने देखी नहीं होगी कभी भी इस तरीके की। ये देखिए ये इस तरीके की इसमें ईंट लगी है पतली और ये दरवाजा यहाँ बना हुआ है यहाँ पे। तो ये यानी आपकी करामत बताई जाती है कि ये एक रात में ही जिस दिन आप तशरीफ़ लाए थे बाहर से,
तो एक रात में ही ये पूरी एक बाउंड्री और भी अच्छे खासे हिस्से में ये बताया था कि जिन्नातों ने, लोग बताते हैं कि जिन्नातों ने इनके लिए बनाई थी, और ये पूरा मतलब एक बाउंड्री करके ये इन्होंने अपना एरिया कर लिया था। अब आपने देखा होगा हम जिस एरिया में आए हैं ये पूरा मतलब यहाँ पे फार्मिंग वगैरह हो रही है, और ये जंगल टाइप इलाका है, मतलब बहुत बाहर है सिटी से, तो पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा ना। तो उस वक्त में जो है ये दरगाह मतलब माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद थी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इतने पुराने बुज़ुर्ग हैं, और उस टाइम पे ये माशाल्लाह यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए थे, और आपने देखे मतलब ये करामत है इनकी। इन्होंने जो जिन्नातों से जो है अपनी ये पूरी दीवार यानी बाउंड्री बनवाई थी अपने लिए, तो ये इनका एरिया है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो पूरा एरिया ही पूरी दुनिया ही बुजुर्गान दिन की है। खैर, और करामत के बारे में मैंने पूछा हज़रत से, इनसे इन्होंने हमें बताया कि जो भी बताया मैंने आपको, तो इन्होंने अभी तक बताया हमें कि कैसे कैसे क्या क्या जो मैंने आपको बताया। तो मैंने इनसे पूछा कि और कोई करामत आपके साथ हुई हो, तो ये फरमा रहे थे, क्या फरमा रहे थे आप? हमने जो दुआएं मांगी हैं वो पूरी हुई हैं आज तक कोई ऐसी दुआ? आज तक। तो ये फरमा रहे हैं कि मतलब करामत क्या बताऊँ, मैंने कहा कि आप बता दीजिए कोई करामत, कि भाई ऐसी कोई करामत आपके साथ हुई हो। तो बता रहे थे कि मैंने आज तक जो दुआ मांगी है वो हर दुआ यहाँ पे कबूल हुई है, कोई दुआ मतलब ऐसी हुई ही नहीं कि मतलब कोई चीज़ कबूल ना हुई हो। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वलियों की शान होती है, वो अल्लाह की अता से जो करना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, दुआएं कबूल भी करते हैं। तो खैर अब हम चलते हैं आगे। नाज़रीन, एक और चीज़ थी, मैंने बताया ना कि मुझे पता नहीं कहाँ से तशरीफ़ लाए थे, जब हमने इनका नाम पढ़ा प्रॉपरली तो इनके नाम में था मक्की, यानी ये मक्का से रहने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मक्का शरीफ से तशरीफ़ लेके आए, तो ये अपडेट देनी थी, तो ये अपडेट दे दी। खैर अब चलते हैं, हम वीडियो को एंड करते हैं। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, ये जो है ना ये है सैयद साहब बिलास साहब चिश्ती कादरी। तो ये जो हम मज़ार शरीफ गए थे ये इनके बड़े भाई हैं। तो अब हमारे पास थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, हम निकल रहे हैं इंशाअल्लाह। तो जब फिर दोबारा कभी अतरौली आएंगे तो इनका बारे में भी हम हिस्ट्री वगैरह करामत वगैरह सबको बताएंगे। और यहाँ पर नज़दीक में जो है हमारे दादा की और चाचा जान की कब्र है, तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ, तो उनके लिए भी आप ज़रूर दुआएं मग़फ़िरत कीजिएगा। तो इनके बारे में इंशाल्लाह तो फिर कभी और जानेंगे। और जहाँ पे अभी हज़रत के पास गए थे पहले, तो उनके अब्बू यानी इनके और उनके अब्बू जान की जो मज़ार है वो आगरा में। तो ये सब जो है मक्की हैं, मक्का शरीफ तशरीफ़ लेके आए हैं। यहाँ पर ये बड़े भाई हैं, वो छोटे भाई जहाँ पे हम गए थे अभी, जिनके बारे में हमने जाना था। और इनके अब्बू जान जो है वो आगरा में आराम फरमा रहे। खैर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। इस बार हम कुछ बता नहीं पा रहे क्योंकि थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, इसके लिए खैर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम मुसलमान हैं, और हम में से कौन नहीं चाहता कि हमारी मग़फ़िरत हो जाए और हमें जहन्नम से बचा लिया जाए, हम जहन्नम में दाखिल ना हो। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने 40 दिन तक सुबह की नमाज इस तरह पढ़ी कि उसकी एक रकात भी फौत ना हुई, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए जहन्नम और निफाक से आज़ादी लिख देता है। सुबहान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसी फ़जीलतें, काफ़ी फ़जीलतें हैं नमाज़ पढ़ने वालों के लिए। तो हमें चाहिए कि हम कोई भी अपनी नमाज जो है क़ज़ा ना करें। हर मुसलमान इन अल्फाज़ों को गौर से सुने और इनके बारे में सोचे। नमाज पढ़ो, इससे पहले तुम्हारी नमाज यानी तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाई जाए। कल जब हम नमाज़ पढ़ना चाहेंगे, कल कब्र में जब होगा ना इंसान, तो उसको मोहलत नहीं मिलेगी नमाज़ पढ़ने के लिए। आज हमारे पास वक्त है, आज हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो आज जो वक्त है उसको यूटिलाइज़ करें, नमाज़ पढ़ें, नमाज कज़ा ना करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ने चाहा तो हमारा बेड़ा पार होगा।
اور ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ عز و جل جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل کہیں اور کسی اور درگاہ پر، تو اسٹے ٹیونڈ رہیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اگر آپ نہیں تو اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔